بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ کورونا کے نئے کیسز پہلی مرتبہ 800 سے کم۔ آذربائیجان سے گھریلو ملازمین لانے کا فیصلہ۔ عسیر میں وزیر سیاحت کی سائیکلنگ ویڈیو وائرل۔ فلم فیسٹیول میں پہلی بار 9 فلمیں پیش۔ مکہ سمیت کئی علاقوں میں بارش متوقع۔ قانون محنت میں نئی ترمیم کیا ہے؟ مملکت کی جانب سے حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام۔ چھٹی پر گئے ہوئے تارکین کا خروج نہائی لگ سکتا ہے، سوال اور اس کے جواب۔ کورونا کے نئے کیسز پہلی مرتبہ 800 سے کم۔ سعودی عرب میں سنیچر 5 ستمبر کو کورونا وائرس کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ 800 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 791 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,19,932 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 779 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,95,842 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 34 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,049 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,041 ہے، جن میں سے 1,470 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد جدہ میں رہی، جہاں 65 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مدینہ میں 64، دمام میں 46، الحفوف 40، ریاض 38، المبرز 31، مکہ 31، قطیف 27، یمبو 24، جبیل 20، حائل 19، رفح 19، خمیس مشیط 18، بقیق 14، تبوک 14، نجران 13 اور بریدہ میں 12 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 9 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 14 شہروں میں 2 اور 11 شہروں میں 3، جبکہ 5 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے اب تک 50 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی بہتر ہوئی ہے۔ آذربائیجان سے گھریلو ملازمین لانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمین لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حال میں ریکروٹنگ ایجنسی نے بتایا کہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمین لائی جائیں گی۔ سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق ریکروٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے مسلم باورچی خواتین لانے کے لیے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت مسان پلیٹ فارم سے لائسنس مل گیا ہے۔ ریکروٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے گھریلو ملازمین لانے کی لاگت 15,000 ریال ہوگی۔ یہ اب تک معروف ملکوں سے گھریلو ملازماؤں کی درآمد کی لاگت کے حوالے سے مناسب ہے۔ سری لنکا سے گھریلو ملازمہ لانے کی لاگت 25,000 ریال آ رہی ہے، جبکہ کارروائی مملکت کرنے میں 90 دن لگتے ہیں۔
फल पॉइंट से घरेलू बावर्ची खातून की दरामद की लागत 16,000 रियाल है और कार्रवाई 90 रोज में मुकम्मल होती है। याद रहे कि अजरबैजान मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप के दरमियान वाक़या मुल्क है। इसके मशरकी में बहर कज़ीन, शमाल में रूस, शमाल मगरब में जॉर्जिया, मगरब में आर्मीनिया और जनूब में ईरान वाक़या है। असीर में वज़ीर सियाहत की साइकिलिंग वीडियो वायरल। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब की असीर के पहाड़ी इलाकों में साइकिलिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। टूरिस्ट गाइड खालिद आल तोक ने वज़ीर सियाहत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब असीर में अल सौदा पहाड़ी इलाके की एक सड़क से साइकिल से सफर करते हुए देखे जा सकते हैं। टूरिस्ट गाइड खालिद आल तोक साइकिल पर सौदा पहाड़ी इलाका की सियाहत में वज़ीर सियाहत के हमरा थे। इस मौका पर वज़ीर सियाहत ने कहा कि असीर के इलाके सौदा का मौसम शानदार है। यहाँ के दिलकश माहौल में साइकिलिंग से बड़ा लुत्फ आता है। अहमद अल खतीब ने यह भी कहा कि टूरिस्ट गाइड अबू मुअज्जब इस सफर में हमरा रहे, सियाहत का लुत्फ दोबाला हो गया। फिल्म फेस्टिवल में पहली बार 9 फिल्में पेश। दम्माम में जारी सऊदी ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में पहली बार 9 फिल्में पेश की गई हैं। ऑनलाइन फेस्टिवल का आगाज मंगल 1 सितंबर को हुआ था और इतवार 6 सितंबर को इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में मुकालमा नगारों को अपनी तख्लीकात के अहदाफ व मकासद उजागर करने और मुकालमों और हदायतकारी के महरक़ात भी बयान करने का मौका मिला है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक फिल्म फेस्टिवल का इंतजाम अंजुमन सकाफत व आर्ट ने किया है। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कल्चर सेंटर असरा ने फेस्टिवल के इनेकाद में तावन किया, जबकि वजारत सकाफत के मातहत फिल्म अथॉरिटी इसकी सरपरस्ती कर रही है। फेस्टिवल 6 सितंबर 2020 को इख्तिताम पजीर होगा। सऊदी फिल्म फेस्टिवल में मुतअद्दिद सकाफती सेमिनार और वर्कशॉप्स मुनक्कद हुई हैं। फिल्म साज, कहानी नगार, मूसीकार शरीक हुए हैं। सऊदी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 2008 में हुई थी। ये सऊदी अरब में सकाफती सरगर्मियों की सरपरस्ती और फिल्म साजों को अपने जोहर दिखाने का मौका फराहम कर रहा है। फिल्म साजी में दिलचस्पी रखने वाले सऊदी नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिल रहा है। याद रहे कि किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर असरा अब तक 20 फिल्में तैयार कर चुका है और 15 अवार्ड जीतने का एजाज भी हासिल किए हुए हैं। मक्का समेत कई इलाकों में बारिश मुतवक्का। सऊदी अरब में मक्का समेत कई इलाकों में बारिश के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। मक्का में रीजनल शहरी दफा का कहना है कि इन दिनों मौसम गैर मुतवक्का रहने के बायस लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। खास तौर पर पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वाले बरसाती नालों के करीब जाने से इज्तनाब कर बरतें। शहरी दफा के रीजनल तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल गरनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि महकमा मौसमियात ने ममलकत समेत मक्का रीजन में बारिश की पेश गोई की है, जिसकी वजह से नशीबी इलाके और पहाड़ी मकामात पर सैलाबी कैफियत पैदा होने का इम्कान है। मक्का रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें ताइफ, मिसान, अर्दियात, अदम शामिल हैं, शनिचर की रात तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इससे बाद मकामात पर नशीबी इलाके बरसाती पानी से मुतासर हो सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने का इम्कान है, जबकि बाद मकामात पर सालाबारी की भी तवक्को है। शहरी दफा के तर्जुमान की जानिब से मजीद कहा गया कि ऐसे अफराद जो बिला वजह खतरों को पसंद करते हैं, उन्हें चाहिए कि किसी किस्म की मुहम जोई ना करें, क्योंकि बाद मकामात पर सैलाबी रेला इंतहाई तेज होता है, जिसकी वजह से वो मुश्किल में मुब्तला ना हो जाएं। तफरीह के हवाले से जाने वाले खास तौर पर अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और उन्हें बहते पानी से दूर रखें ताकि किसी मुश्किल में मुब्तला ना हो। कानून मेहनत में नई तरमीम क्या है?
सऊदी अरब में उम्मुल-कुरा सरकारी गजट ने कानून मेहनत में तरमीम का मतन शाया किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक तरमीम के तहत ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि 18 बरस से कम उम्र के किसी भी शख्स को दुकान में मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। उम्मुल-कुरा गजट ने सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नर की जानिब से जारी करदा 33 नए स्टैंडर्ड की मंजूरी शाया की है, जिनका ताल्लुक पेट्रोकेमिकल मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक व बरकी मसनूआत और इनकी खसूसियात, तमीराती सामान और खिदमात के शोबे की खसूसियात से हैं। सऊदी काबीना ने कानून मेहनत की दफ़ा 149 और 150 वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद की दरख्वास्त पर मनसूख की है, जबकि एक दफ़ा का इजाफा कर दिया गया है। इस दफ़ा के तहत वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद को अख्तियार तफवीज़ किया गया है कि वो ऐसे पेशों और ऐसी सरगर्मियों की निशानदही करें जो कारकुन के लिए पुरखतर हों या नुकसानदा हों, या वो ऐसा पेशा या ऐसा काम हो जिसे अंजाम देने की सूरत में कारकुन गैर मामूली नुकसानात से दो चार हो सकता हो। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद को ये अख्तियार भी दिया गया है कि वो ऐसे ज़ुमरों का तयन करें जिन्हें उन पेशों या सरगर्मियों में आर्जी तौर पर या मुस्तक़बिल बुनियादों पर काम करने की इजाज़त ना हो। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत को ये अख्तियार भी होगा कि वो इस किस्म के पेशों और सरगर्मियों में मखसूस ज़ुमरों से मंसूब अफराद की ड्यूटी को मशरूत कर दें और वो इस हवाले से इनके लिए औकात कार भी मुतय्यन कर सकते हैं। सऊदी काबीना ने कानून मेहनत की दफ़ा 186 में जो तरमीम मंजूर की है, इसके मुताबिक दफ़ा 186 के तहत 18 बरस से कम उम्र किसी भी शख्स को कान या पत्थर तोड़ने वाले मराकज में मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। ममलकत की जानिब हौथियों का ड्रोन हमला नाकाम। यमन में आईनी हुकूमत की मदद के लिए कायम अरब इत्तेहादी अफवाज ने हौथी बागियों की जानिब से सऊदी अरब में किया जाने वाला एक और बड़ा ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA ने इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी के हवाले से कहा कि यमन में ईरान नवाज हौथी बागियों की जानिब से मुमलकत पर एक और बड़ा ड्रोन हमला किया गया था, जिसे इत्तेहादी फोर्सेस की एयर कमांड एंड कंट्रोल यूनिट ने उस वक्त नाकाम बना दिया जब ड्रोन यमन की हदूद में ही था। इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने मजीद बताया कि इत्तेहादी फोर्सेस की एयर कमांड यूनिट ने जुमा की शब ईरान नवाज हौथी बागियों की जानिब से मुमलकत की सिमत ड्रोन हमले की निशानदेही की, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए एयर कमांड ने इसे यमन की सरहद के अंदर ही तबाह कर दिया। कर्नल मालिकी ने मजीद कहा है कि ईरान नवाज हौथी बागियों की जानिब से मुसलसल मुमलकत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जिनका मकसद सऊदी अरब की मासूम शहरियों को निशाना बनाना है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी ईरान नवाज हौथी बागियों की जानिब से मुमलकत पर मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए थे, जिनमें से एक मिसाइल हमला अबहा एयरपोर्ट की जानिब से किया गया था, जिसे फिजा में ही नाकाम बना दिया गया था। कर्नल तुर्की अल-मालिकी का कहना था कि हौथी बागियों की जानिब से मुसलसल बैनुल-अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिनका मकसद इलाके के अमन और शहरियों की जान को नुकसान पहुंचाना है, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। छुट्टी पर गए हुए तारकीन का खरूज नहीं लग सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं, ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुकाम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे, मुतल्ला कर दिया जाएगा। कारीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। अब्दुल्ला मुगल ने सवाल किया है, सऊदी अरब से खरूज नहाई पर जाने वाले क्या दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि खरूज नहाई फाइनल एग्जिट पर जाने के बाद 5 बरस तक दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। उनका ये भी कहना है कि ये नया कानून है। सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट
के कानून के मुताबिक ममलकत में कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्की अगर मुस्तकिल तौर पर वतन जाना चाहते हैं तो इनके लिए लाजमी है कि वो खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करें। खरूज नहाई वीज़ा पर जाने वाले जब भी चाहें दूसरे वीज़े पर ममलकत आ सकते हैं। इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी वगैरह नहीं है। जहां तक आप नए कानून के बारे में सुना है ऐसा कुछ नहीं, ताहम कफील या साबका कंपनी से किसी मामले पर कानूनी इख्तलाफात हुआ हो और इसकी जानिब से कानूनी तौर पर मुकर्रर मुद्दत तक के लिए ममलकत आने पर पाबंदी आयद की जाए जिसे लेबर कोर्ट से भी मंजूर किया गया हो तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। इसमें जानने वाले गैर मुल्की को इस बारे में भी मुतल्ला किया जाता है। ताहम अगर ऐसा कोई मामला नहीं हो तो दोबारा आने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। राना ज़ीशान का सवाल है, क्या छुट्टी पर गए हुए लोगों का कफील खरूज नहाई लगा सकता है या नहीं, रहनुमाई करें। जवाब, सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक जो लोग वर्क वीज़े पर ममलकत में काम करते हैं इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से क़वानीन मरतब किए गए हैं जिनके मुताबिक कारकुन की मुस्तकिल तौर पर वापसी की सूरत में इनके तमाम हकूक़ और वाजिबात अदा करना कंपनी या कफील की जिम्मेदारी है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो कानून के मुताबिक वो तारकिन जो खरूज उहदा पर ममलकत से गए हुए हों उनका खरूज नहाई नहीं लग सकता। खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाने के लिए उस शख्स का ममलकत में होना और कार आमद इकामा होना लाजमी है। इसके बगैर खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। रहमत खान ने पूछा है कि इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, क्या कफील मेरा इकामा तजदीद करा सकता है। जवाब, मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी बरकरार है। ताहम इस हवाले से सऊदी हकाम की जानिब से 2 बार गैर मुल्कियों के इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की जा चुकी है। हुकूमती रायत के बगैर कफील आपके इकामे की मुद्दत में तोसी करने का मिजाज नहीं। इकामा की तजदीद के वक्त कारकुन का ममलकत में मौजूद होना ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ जो कि मैंने आपके सामने पढ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।